Today's topic is on flexible pavement design. Okay, using IRC method or it is also known as modified CBR method. The initial method was only CBR method, which was based on US court. Which, আচ্ছা মিউট করবে কারটা আওয়াজ হচ্ছে একটা everyone please mute your mic. Thank you. So पिछले वाला जो भी है, it was only based on CBR method, which is also known as US United States Corps of Engineers formula. Okay, Corps of Engineers formula. Now this is the modified version, or rather we can say this method is used in your IRC as per the recommendation of IRC 37. Okay. Now before starting, we must know what are the basic concept for designing the flexible pavement using this method. What are the basic concepts? Those are, first we have to know about the design traffic. Okay, design traffic means how much number of axle load or wheel load will be passing through this pavement throughout its design life. That means for flexible pavement, we all know that the design life is about 15 to 20 years. So for 15 to 20 years, how many vehicles in terms of standard axle load that will pass through this pavement layer? Okay, so we have to calculate that one. If we know this number of loads, which is also known as given as capital N, if we know this value, then we can easily assume the thickness, how much thickness must be required in order to sustain this number of repetition of load. Okay, and another is the property. We must also know the property of the soil. That means soil means what? This subgrade, the last layer is also known as subgrade, which is nothing but the base or the foundation of the total pavement. This is pavement. Okay, from here to here, from top surface to the top of subgrade is known as pavement. So the total load, the pavement function is to transfer this load from top surface to the natural soil beneath the pavement, and the foundation, the below there will be the natural soil, and above there is one more layer which is the subgrade compacted soil. Okay, so we must know the property of the soil also, out of which this subgrade is made up of. So, and this is denoted by your California bearing ratio. Okay, so the two factors are important for the design of flexible pavement based on this method. First, we need to calculate, or we need to know, or we need to determine the traffic load, how much it is coming upon this layer, and what will be the property of the soil or the strength of the soil in terms of CBR. Clear? Now comes this value, CBR value, we can calculate as we already know how to calculate the CBR value. Any idea? We need to conduct a test. That means suppose this was your subgrade layer. Okay, the soil that we'll be using for subgrade formation, we must collect that sample. Okay, and there will be a cylinder where we will compact that material, that soil. Okay, and we will give it some load using with the help of a plunger whose diameter will be about 5 centimeter. Okay, so we need to calculate this load, how much load is applied for certain deformation. So two materials, two parameter is to be uh, determined in this test. First is what is the load, and we have to fix the deformation. For certain deformation, what will be the load on that sample. ओके मतलब कि उस डिफॉर्मेशन को लेने के लिए, उस डिफॉर्मेशन जनरेट होने के लिए कितना लोड चाहिए. ठीक है, तो सीबीआर में दो ही डिफॉर्मेशन आता है. दो ही डिफॉर्मेशन क्या है? एक है बहुत सारा, लेकिन जिसको लेकर हमको सीबीआर का फॉर्मूला डिराइव किया है, दैट इज 2.5 mm. ओके, इफ द पेनिट्रेशन इज 2.5 mm, ये पेनिट्रेट हो रहा है 1 mm हुआ, 2 mm हुआ, 2.5 mm में कुछ पेनिट्रेशन हुआ, उसका हमको लोड चाहिए. सपोज दिस इज P 2.5. ओके, सिमिलरली ये और पेनिट्रेशन होता जाएगा और लोड बढ़ता जाएगा करते करते, और डेप्थ कैलकुलेट करना है और डिफॉर्मेशन लेना है. सपोज दैट न्यू कैलकुलेशन और न्यू deformation is 5 mm. Now for 5 mm penetration, what will be your load? Okay, if we calculate this two, then the CBR is given by formula CBR equals to this P 2.5 मतलब 2.5 mm
पेनिट्रेशन के लिए कितना लोड हुआ इन टर्म्स ऑफ केजी, ये सब भी हो सकती है, टर्म्स ऑफ केजी में भी हो सकता है या इन टर्म्स ऑफ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब प्रेशर में भी हो सकता है। अब इसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर कैसे निकालते हैं? इफ वी नो द लोड, इफ वी नो द एरिया ओवर विच दिस लोड इज एक्टिंग, so we can easily calculate the pressure also, load per unit area, whereas the area is what, we know the diameter of the plunger, yes, so we can calculate the area of that surface, that is pi into 5 square, pi d square, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिख देंगे ऊपर में, और नीचे रहेगा तुम्हारा स्टैंडर्ड जो भी सैंपल है, ये किसका है, ये P2.5 है फॉर द सैंपल, सबग्रेड में जो सॉइल यूज किया है उसका P कितना 2.5 mm डिफॉर्मेशन के लिए कितना लोड है, वो टेस्ट से हमको मिला। और एक स्टैंडर्ड मटेरियल का होगा, अब स्टैंडर्ड मटेरियल का लोड कितना होना चाहिए 2.5, स्टैंडर्ड मटेरियल इज मेड ऑफ क्रस्ट स्टोन, कॉम्पैक्टेड क्रस्ट स्टोन, ठीक है। उसके ऊपर ये वाला इट इज ऑलरेडी डिफाइंड, कितना था ये वाला 1370 आई थिंक ना, 1370, ठीक है। 2.5 के लिए 1370, ओके। अब वैसे P CBR और वैल्यू है P5 फॉर 5 mm का जो हम लिए थे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड कितना 5 mm पेनिट्रेशन ऑन द क्रस्ट स्टोन, और द स्टैंडर्ड सैंपल इज 2055 kg, ठीक है। सो 2055 kg. You can go through my previous video also or my previous lecture on the CBR method. There I have explained it thoroughly. So ऐसा एक होता है, तो इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमको लेना पड़ता है, ठीक है। CBR 2.5 का कितना होगा, CBR 5 का कितना होगा, so यहाँ से सपोज 2.5 का एक वैल्यू आ गया, so we will get this from the experiment of CBR. अब इसके लिए क्या चाहिए, there is a formula in your IRC code, ठीक है। देखा है कि उसमें एक फॉर्मूला दिया गया है, सपोज पेज, अच्छा पेज मतलब बोल दे रहे, ये पेज था तुम्हारा 914 में, 14 पेज में, see here, this is that formula, okay, it is given in page number 14, you can note it down. So ये वाला जो formula है that is your design traffic n, okay, ये वाला तुम लोग already पढ़ चुके हो। Now before explaining this formula we must know what are the factors on which this n is dependent, ये n किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो बहुत सारा टर्म्स है a d f ये सब है, तो उसमें किस किस के ऊपर ये डिपेंडेंट है, ठीक है। So the factors are, first we must transfer every load, every axle load to the standard axle load, ठीक है। सबको स्टैंडर्ड क्यों करना है, क्योंकि उसका सबका एक्सेल लोड देयर इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल, so different types of vehicle का different axle load होगा, so we have to convert everything into the single unit which is the standard axle, okay। The another is initial traffic which is denoted by a, initial traffic मतलब है कि तुम्हारा pavement is suppose आज के दिन में you are constructing the pavement, so we can't allow the traffic to move over it from today onwards only, right, we have, there will be some construction period, throughout the construction period traffic won't be allowed to travel through that new constructed road, so suppose that construction period is 2 years, so for 2 years obviously your traffic will not remain same, आज के दिन में जो traffic है obviously 2 years के बाद it will increase, okay। So here is that suppose 2020 में तुम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और 2022 से you can now allow कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, रोडवे कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, अब वहां से ट्रैफिक पास हो सकता है, सो 2020 का जो ट्रैफिक काउंट है, कितना व्हीकल जा रहा है, ठीक है, उस जगह का ट्रैफिक काउंट कितना है, दैट इज योर, ओके, एंड दिस इज योर आफ्टर कंस्ट्रक्शन, दैट इज ए, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है कि ए विल ऑब्वियसली ग्रेटर देन पी, क्योंकि आफ्टर 2 years द ट्रैफिक विल इंक्रीज बाय सर्टेन अमाउंट, नाउ हाउ टू कैलकुलेट दैट, ए इज गिवन बाय पी 1 प्लस r to the power n, ओके, मतलब सॉरी x r to the power x, जो कि ये रिलेशन से है, see this one p a is p into 1 plus r to the power x, तो ये ट्रैफिक जो इंक्रीज होगा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली इन द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन,
कितना दिन या साल लगा तुमको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, विच इज योर एक्स वैल्यू। ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन पीरियड। सी दिस इज एक्स ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड। इफ नॉट गिवन एज्यूम इट एज 3 to 4 years, इनके बीच में एज्यूम करना है। आर इज व्हाट, पर ईयर एक सर्टेन रेट में ग्रो होता है ट्रैफिक, दैट इज योर आर। कितना परसेंटेज ग्रोथ होता है पर एनम, सो एनुअल ट्रैफिक ग्रोथ विच इज अगेन एज्यूम टू बी एज 7.5%। अब इसको डेसिमल में लिख देंगे तो 0.075। एंड पी इज योर बिफोर कंस्ट्रक्शन एंड ए इज योर आफ्टर कंस्ट्रक्शन। एंड द टोटल एन, तो कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स पास होता है उस पेवमेंट से थ्रू आउट इज डिजाइन लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल ट्रैफिक। मतलब जब से वो खुला है, जब से वो पेवमेंट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, उस ट्रैफिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इतना फॉर्मूला में तुम्हारा देयर इज ए टर्म दैट व्हिच आई हैव शोन यू। यहाँ पे देखो ए टर्म है, दिस इज योर ए टर्म। ओके, और यूनिट याद रखना है, दिस इज योर कमर्शियल व्हीकल पर डे। आई एम ऑलवेज सेइंग दैट द व्हीकल विच वी आर कंसिडरिंग फॉर ऑल दिस डिजाइन पर्पज, या जिस व्हीकल का लोड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इट शुड बी कमर्शियल व्हीकल। जैसे ऑटो वॉटो ये सब नहीं, कमर्शियल व्हीकल मतलब है जिसका लैडेन वेट, लैडेन वेट मीन्स टोटल वेट विथ लोडेड कंडीशन में जो वेट स्ट्रक हुआ, ठीक है, तुम्हारा लॉरीज हुआ, सबको अगर हम पूरा भर्ती करके अगर वेट लेंगे, दैट इज योर लैडेन वेट। हाँ, यस, বলছি কমার্শিয়াল ব্রেকের একটা ওয়েট হয় না, যে ওয়েটটা যে ডিনোট করে हाँ যে এটা हाँ हाँ কমার্শিয়াল हाँ ব্রেকের हाँ, एंड दैट वेट शुड बी ग्रेटर देन 3 टन। ठीक है, 3 টন। whatever আচ্ছা, vehicles with its laden weight or with its growth weight, if it is exceeds 3 tons, that means 3 टन से ज्यादा अगर हुआ, we will consider it to be commercial vehicle। ठीक है, तो उसी को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एंड द स्टैंडर्ड एक्सल जो बार बार बोल रहे हैं, इट शुड बी फॉर द रियर एक्सल, नॉट फॉर द फ्रंट एक्सल। जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, सी स्टैंडर्ड एक्सल कौन सा लेना है। सपोज ये तुम्हारा एक लॉरी हुआ, ये भी एक टाइप का लॉरी हुआ, ये सिंगल एक्सल, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक्सल है, यहाँ पे 2 है, ये सपोज ये टैंडम एक्सल। ठीक है, फॉर डिजाइन पर्पज वी शुड ऑलवेज कंसिडर फॉर द रियर पोर्शन, मतलब रियर व्हीकल, इसको बोलते हैं रियर एक्सल, वेयर दिस इज अ फ्रंट एक्सल। तो हमको हमेशा ये वाला ही कंसिडर करना है, नॉट द फ्रंट एक्सल, क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम लोड इज ट्रांसफर्ड टू द पेवमेंट थ्रू द रियर एक्सल में, जो भी व्हील्स है उससे ज्यादा, उससे मैक्सिमम लोड ट्रांसफर होता है पेवमेंट में। ठीक है, तो देखो सिंगल एक्सल का हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू बोल दिया कितना, 8160 kg, और तुम्हारा नंबर है इतना kg। ठीक है, अच्छा, और एक टर्म है कि ये जो स्टैंडर्ड एक्सल है उसको छोड़कर और एक टर्म है, अनदर इज योर लीगल एक्सल। आई एम ऑलवेज सेइंग दैट लीगल एक्सल शुड बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड एक्सल, बिकॉज ये तो हम लोग फॉर डिजाइन पर्पज वी आर यूजिंग। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी ज्यादा लोड कैरी करके जा सकता है वही सेम सिंगल एक्सल वाला व्हीकल। ये इसका हम लोग बोले थे स्टैंडर्ड शुड बी 8160 kg सिंगल एक्सल के लिए, बट कभी कभी देखा जाता है कि इससे भी ज्यादा लोड कैरी करके ये जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सल लोड बहुत ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड एक्सल। तो हम लोग अलाउ करेंगे इस व्हीकल को पास करने में, मतलब उस पेवमेंट से जाने में, इफ इट्स लीगल एक्सल लोड डज नॉट एक्सिस्ट द लिमिट विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस। जिसका वेट अगर ये लीगल एक्सल लोड से कम रहेगा, स्टैंडर्ड एक्सल से ज्यादा है लेकिन लीगल एक्सल से कम है, देन वी विल अलाउ इट, वी विल परमिट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीगल एक्सल लोड। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड एक्सल लोड। से फॉर एग्जांपल 8160 kg है तुम्हारा स्टैंडर्ड, तो इसका हो जाएगा 10,000 kg लीगल का। ठीक है, उतना जैसे ये 14.96 है टैंडम का, लीगल का हो जाएगा तुम्हारा 19.2 या 19 टर्न्स। ठीक है, 19,000 kg हो जाता है। So this is the difference between standard and legal axle। ये वाला फर्स्ट फैक्टर ओके अंडरस्टूड। दूसरा इनिशियल ट्रैफिक, ये भी समझ में आया कौन सा ट्रैफिक है। देखो दिस इज इनिशियल ट्रैफिक आफ्टर कंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई ए, बिफोर कंस्ट्रक्शन होने से पी हो जाता है, या लास्ट काउंट भी बोल सकता है, लास्ट काउंट। ठीक है, ट्रैफिक ग्रोथ रेट आर परसेंटेज में होना चाहिए, डिजाइन लाइफ एन, स्मॉल एन इन ईयर्स, व्हीकल डैमेज फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं ये दोनों में, ये समझ में आ गया है। ट्रैफिक ग्रोथ रोड करने के लिए एज्यूम करो इतना। अच्छा, डिजाइन लाइफ सी ईयर, समटाइम्स दे वोंट गिव यू द डिजाइन लाइफ, दे विल जस्ट से दैट इट इज अ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। ठीक है, देन वी हैव टू एज्यूम इट एज स्मॉल एन एज 15 इयर्स। समटाइम इट इज सेट अर्बन रोड्स, मतलब जो तुम्हारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कोलकाता वोलकाता दिल्ली वैली, जहाँ पे तुम्हारा जैसा रास्ता है, ठीक है, वहाँ पे ये ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम टाइम ही बिजी रहता है, बिजी रोड है, तो उसका लाइफ थोड़ा ज्यादा करके हमको डिजाइन करना है।
अदर कैटेगरीज मतलब उससे कम इंपॉर्टेंस वाला जो भी लोड रहेगा उसका लाइफ 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, नाउ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज योर व्हीकल डैमेज फैक्टर? आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है पेमेंट डिजाइन में, उसमें एक टर्म था इक्विवेलेंट व्हील लोड फैक्टर था, है तो जैसे एक था तुम्हारा इक्विवेलेंट, यू कैन नोट इट डाउन, एक्सल लोड फैक्टर, EALF। ठीक है, ये इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर, और एक तुम्हारा इक्विवेलेंट ESAL, इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल फैक्टर, एक्सल लोड फैक्टर। ठीक है, और ये है हमारा VDF। ठीक है, दिस इज योर EALF, दिस इज योर ESLF, और एक है VDF। समटाइम्स दिस ESAL और VDF दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला से जब डिराइव करते तब समझ में आएगा सेम क्यों है। आई सेड ELF वाज व्हाट, ये है तुम्हारा, सपोज एक रास्ता हुआ, ठीक है, उस रास्ते से एक स्टैंडर्ड व्हीकल जा रहा है, एस व्हीकल, स्टैंडर्ड व्हीकल जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी डैमेज, सपोज इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन हम बोले, सपोज कोई डिफॉर्म हुआ इसकी वजह से, लोड की वजह से, सो वी कैन कंसीडर इट एज अ, या कोई क्रैक डेवलप हुआ, डैमेज हुआ। ठीक है, जिसका लोड क्या है, हम लोग बोल रहे हैं WS। ठीक है, और उसी पेवमेंट पर कोई अलग सा व्हीकल जाएगा, सपोज IX व्हीकल, उसका लोड है I, उसकी वजह से डैमेज हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला का डैमेज अलग होगा, ये वाला का डैमेज अलग होगा, अनलेस एंड अनलेस दिस टू आर सेम वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड का है तुम्हारा 8.2 टन, इसका है सपोज 14 किलोन्यूटन, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो बोला है कि इसकी वजह से जो डैमेज होगा ऑब्वियसली इसका अलग हो ही सकता है, बिकॉज ऑफ इस एक्सल कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का एक्सल कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकता है उसकी वजह से। So if we consider the damage of this ith vehicle, damage caused by this ith vehicle with respect or relative to the damage caused by the standard vehicle, उसको बोलते हैं EALF। ठीक है, EALF बोलते हैं इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका एक्सल लोड कुछ और है, इसका स्टैंडर्ड एक्सल लोड हम बोल रहे थे 8.2 टन है, या 8160 kg, और इसका कुछ अलग ही है, अबव 8 भी हो सकता है या लेस देन 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का वजह से जो भी डैमेज होगा, अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे, और डैमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड, इसकी वजह से जो भी डैमेज होगा, और मतलब सपोज ये कम है व्हीकल, ये है तुम्हारा 8.2 है स्टैंडर्ड, 8.2 टन है, वेरेज इसका सपोज 5 टन है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से जो भी डैमेज होगा दैट विल बी लेस देन दिस वन। ठीक है, तो नाउ डैमेज डिपेंड्स ऑन व्हिच फैक्टर, ऑब्वियसली ऑन इट्स एक्सल लोड। तो डैमेज को नहीं लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, WI by WS, you can write this also, damage by damage caused by the I factor by damage caused by the standard factor। तो इन दोनों का ये जो रेशियो है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या सॉरी फोर्थ लॉ अप्लाई करेंगे, मतलब टू द पावर 4, सॉरी मतलब कि WI by WS to the power 4, अगर ये करेंगे देन दिस इज कॉल्ड EALF of that axle load, ith axle load। ठीक है, इसको I लिख दिया हम। ठीक है, सो ELF I इज दिस फॉर्मूला। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, कि कितना इस वाला टाइप का लोड कितना बार जा रहा है, नंबर ऑफ रिपीटेशन और फ्रीक्वेंसी दो हो सकता है। ठीक है, एक होता है कि कितना नंबर ऑफ लोड जा रहा है फॉर दिस ith व्हीकल। ठीक है, 5 किलो न्यूटन का, 5 टन का तुम्हारा 10 टू व्हीकल जा रहा है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10, ठीक है, वैसे एक ही टाइप का तो व्हीकल नहीं जाता, बहुत टाइप का जाता है, इट मे बी 5 टन, इट मे बी 10 टन, राइट। तो सबको अगर हम ऐड कर देंगे वी विल गेट दैट एज ESAL। सो ESAL का फॉर्मूला है तुम्हारा, ESAL इज गिवन बाय फॉर्मूला समेशन ऑफ EALF, EALF ith व्हीकल के लिए, वो ith 10 हो सकता है या 5 हो सकता है, मतलब category it may be 5 types of vehicle with different axle load, or n number of vehicles with different axle load, and NI, और दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको अगर हम समेशन कर देंगे we will get ESAL।
This is also sometime Sion তোমাকে বলছি ঠিক আছে, this is also sometime asked you like this, find the equivalent number of standard axle load. Okay, they may ask you like this, বুঝছি find the বুঝছি equivalent number of standard axle load for this range of axle load. और बहुत सारा एक्सेल लोड दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि इन सब का इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कितना है, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. क्लियर. सपोज 80 है तुम्हारा, 80 न्यूटन इज योर स्टैंडर्ड एक्सेल लोड. ठीक है, अगर उसको बोलिया है कि ये वाला व्हीकल्स जाएगा, दिस व्हीकल्स विल मूव 100 टाइम्स, मतलब 80 किलो न्यूटन का है तुम्हारा, कितना नंबर है, 100 नंबर इज 100. सपोज 40 किलो न्यूटन क्या है तुम्हारा, कितना, 60 नंबर ऑफ व्हीकल से कितना, ये 40 किलो न्यूटन वाला एक्सेल लोड है. ठीक है, और दिया है यहाँ पर सपोज 90 किलो न्यूटन है, सपोज 150. ठीक है, तो बोलेगा इन सब एक्सेल लोड रेंज के लिए फाइंड द इक्विवेलेंट रिपीटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड. सो सबको क्या करना है, हमको वही फॉर्मूला ESAL जो फॉर्मूला था उसमें बिठा देना है. कैसे बिठाओगे, WI by WS. सपोज दिस इज I, दिस इज I equals to 1, I equals to 2, I equals to 3. सबका समेशन करना है. सो क्या करेंगे, 80 by what is standard बता एक्सेल, 80, स्टैंडर्ड हाँ स्टैंडर्ड इज दिस वन टू द पावर 4. ठीक 80 है, 80 टू द पावर 4 into 100. ओके, प्लस যে ভ্যালুটা বেরোবে 40 নাম্বার অফ by 80. Standard Excel is how much? Again 80 to the power 4 into 60. Number of repetition कितना था, 60. वैसे ही सबको करना है. दूसरा क्या आ जाएगा तुम लोग, 90 by 80 to the power 4 into 150. That will give you ESL for the standard Excel load and number of repetition of standard Excel load. ठीक है, और वैसे ही डैमेज, व्हीकल डैमेज फैक्टर को भी हम ESL भी कह सकते हैं, which is given by again this formula. देखो अगर नंबर दिया रहेगा तो नंबर इज डिनोटेड बाय हाउ मच, ये वाला. सपोज ये बोला था हम लोग कितना था, 80 by 80 to the power 4. 80 क्यों, क्योंकि हम लोग बोल रहे थे यू हैव टू नो फर्स्ट फाइंड, यू मस्ट सी इन द क्वेश्चन कि लोड का यूनिट क्या है. किलो न्यूटन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एक्सेल 80 किलो न्यूटन. अगर केजी में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8160 केजी फॉर सिंगल एक्सेल. अगर तुम्हारा टर्न में है 1 W2 W3, अगर टर्न में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 8.2 टर्न्स. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स, करस्पॉन्डिंग व्हीकल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. ठीक है, मतलब ये था पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन इट वाज 100 into the 80 by 80 to the power 4 plus 60 into कितना था, 40 by 80 to the power 4 plus 150 into 90 by 80 to the power 4 divided by 100, 40 and 120, 150. So we will get the PDF. और नंबर नहीं देकर क्या दिया रहेगा, दे विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी. समटाइम फ्रीक्वेंसी मीन्स इन परसेंटेज. फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे एक एग्जांपल है, देखो वन एग्जांपल. देखो दिस इज वन एग्जांपल. फ्रॉम एक्सेल लोड सर्वे फॉलोइंग डाटा हैज बीन फाउंड फॉर सिंगल एक्सेल लोड कॉन्फ़िगरेशन. एक्सेल लोड सर्वे किया, ये डाटा मिला है. दिस इज एक्सेल लोड रेंज 17 to 15, मतलब 15 टन से लेकर 17 टन का जो भी एक्सेल लोड वाला टाइप का व्हीकल है, कितना बार जा रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 4%. ठीक है, सपोज हम लोगों ने रास्ते पर एक एक्सेल लोड सर्वे किया, हम लोग का सैंपल साइज है, हम तो सब व्हीकल्स को रोक रोक के तो नहीं कर सकते, कितना केजी है तुम्हारा, कितना केजी नहीं पूछ सकते ना, या हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते. तो क्या करना है हमको, वी विल टेक अ सैंपल. सपोज 100 या 10 नंबर ऑफ व्हीकल्स हम लोग लिए. फॉर दिस एग्जांपल आई एम टेकिंग सब 100 नंबर ऑफ व्हीकल्स हम पकड़े, क्योंकि हम लोग वहां से जितना जा रहा है उसमें से हम 100 व्हीकल्स का ही टेस्ट करेंगे. ठीक है, तो देखा गया कि वो 100 व्हीकल्स में से 4 व्हीकल्स इस रेंज में है, 19 व्हीकल्स इस रेंज में है, 24 व्हीकल्स इस रेंज में, ऐसे करके दे दिया. टोटल विल बी 100. 100 क्यों बोले, क्योंकि ये परसेंटेज में है, इसलिए हम इसको इजी करने के लिए 100 में समझा रहे हैं. ठीक है, वैसे तुम लोग अगर 200 का अगर लोगे, ठीक है, या तुम्हारा 1000 का अगर सैंपल लोगे, 1000 व्हीकल के ऊपर करोगे, ये क्या हो जाएगा, 4% of 1000 will give you 40 number of vehicles. 4 by 100 into 1000, right? And 19% of vehicle will give you 190 number of vehicles. ठीक है, तो इतना कुछ कैलकुलेशन ना करके भी हम डायरेक्ट ये जो बोले थे फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट बिठा सकते हैं. सी दिस वन,
सबको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेसिमल में पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी जितना भी है, सपोज ये वाला बोले तो कितना 17 से लेकर 15 तक का ये है एक्सेल लोड रेंज, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये सिंगल एक्सेल बोल दिया है तो कितना टर्न्स में था वहां पे, सो 8.2 टर्न्स, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना था 4%, मतलब 0.04, ठीक है। वैसे यहाँ पे जाओ, CS, ठीक है, ऑल दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे हम लिख दिए F1 F2 ये सब, और WI इज व्हाट, यहाँ पे तो रेंज दिया है तो हमको इसको एक ही वैल्यू में कन्वर्ट करना है, विच इज द मीन वैल्यू, मीन मतलब एवरेज, तो 17 और 15 का एवरेज होगा 16, वैसे यहाँ पे सब ले लिया, फॉर्मूला में बिठाओ, वी विल गेट द VDF, ठीक है। देखो F1 W1 by WS to the 4 ऐसा करके गया, F1 कितना था 0.04, और तुम्हारा मीडियन कितना था 16, और हम लोग बोलते टर्न में है तो ये हो जाएगा 8.2 टर्न्स, स्टैंडर्ड एक्सेल लोड इज 8.2 पर सिंगल एक्सेल, करो इतना है 4.233, क्लियर यहाँ तक? एवरीवन समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैम। सो गए क्या? হ্যাঁ ম্যাম, यस मैम। বুঝতে পেরেছি। अच्छा, तो दिस इज योर VDF, ठीक है। हम बोले थे बहुत सारा फैक्टर इफेक्ट करता है, उसमें से ये VDF हो गया, और रहा तुम्हारा कौन सा, अब नाउ कम्स योर लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। देखो ये VDF इट में भी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में, तो डिपेंड करता है ऑब्वियसली, ठीक है। टेरेन मतलब रोलिंग हिली प्लेन यहाँ से आ रहा है, देखो, ठीक है। एक्सेल लोडिंग कितना एक्सेल लोड आएगा, टाइप्स ऑफ लोड, और रीजन टू रीजन मतलब रेनफॉल एरियाज में कैसा हो जाएगा वो, ऑब्वियसली रेनफॉल एरिया में डैमेज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेनफॉल एरिया में क्या हो जाता है, तुम्हारा सबग्रिड का प्रॉपर्टी थोड़ा वीक हो जाता है ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, तो उसकी वजह से डैमेज कम लोड से भी डैमेज ज्यादा हो जाएगा। शुद्ध ऐसे बेसिक लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द डैमेज कॉज्ड बाय द व्हीकल टू द पेवमेंट, नॉट द पेवमेंट की वजह से व्हीकल पे जो डैमेज हो रहा है ये नहीं है, दिस इज द डैमेज कॉज्ड बाय द व्हीकल मतलब एक्सेल लोड टू द पेवमेंट, ठीक है। नाउ लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सी दिस वैल्यूज यू विल गेट फ्रॉम द IRC कोड, ये वाला सब यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे बोल रहे हैं। सी हियर पेज तुम्हारा है ये 30 में, ठीक है। सिंगल कैरेज वे है, ये तीनों है सिंगल कैरेज वे के लिए, और लास्ट में सब एक साथ दिया है डुअल कैरेज वे रोड। सिंगल कैरेज वे अगर सिंगल लेन रहेगा तो 100% हो जाएगा लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, अगर दो ठो सिंगल कैरेज वे में अगर दो ठो लेन रहेगा तो 75% हो जाएगा, 3 लेन रहेगा तो 60%, 4 लेन रहेगा तो 40%, वैसे डुअल कैरेज वे का भी दे दिया है, ठीक है। 75% फॉर 2 लेन, 3 लेन के लिए 60%, और 4 लेन के यहाँ पे है तुम्हारा 45%, यहाँ पे था 4 40%, यहाँ पे 45%, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, नाउ व्हाट इज दिस लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एनी आइडिया? ये लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो सकता है? ये क्या अच्छा, ম্যাম ভ্যালুটা তো জানি কিন্তু लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा मैम लेन के हिसाब से। देखो लेन डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूट म्यूट म्यूट, लेन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि तुम्हारा लेन में कितना परसेंटेज ऑफ लेन इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द व्हील लोड और द एक्सेल लोड, ठीक है। एक लेन है उसमें उसका कितना पोर्शन एक्सेल लोड उसके ऊपर से जाएगा, दैट इज द लेन डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज ये सिंगल, हम कैरेज वे का मतलब है कि एक ही कैरेज वे, देखो यहाँ पे एक ही कैरेज वे है, यहाँ पे भी एक ही कैरेज वे है, सो दिस आर सिंगल कैरेज वे एग्जांपल। ये सिंगल लेन है 3.5 मीटर, और ये 2 लेन है 3.5 मीटर, दो ठो करके, ठीक है। तो सिंगल लेन अगर हुआ मतलब क्या है, मतलब 3.5 मीटर का ही हुआ, मतलब एक ही गाड़ी इसको पास इस रास्ते से होकर जाएगा, अगर यहाँ पे और एक व्हीकल रहेगा, इफ देयर विल बी वन मोर व्हीकल बिहाइंड, इट इज बाउंड टू फॉलो दैट इनिशियल व्हीकल, राइट, वो व्हीकल 1 को फॉलो करना ही पड़ेगा उसको, देयर इज नो चांस टू ओवरटेक एंड गो, ठीक है। मतलब ये वाला व्हीकल इसी एरिया से होकर जाएगा, ये वाला व्हीकल भी इसी एरिया से होकर जाएगा, तो दिस लेन इज नाउ फुल्ली यूटिलाइज्ड बाय ऑल द व्हीकल्स, दैट्स व्हाई इट इज लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज हाउ मच 100%,
1. Now in case of two lane, see here, in case of two lane, suppose this is slow moving vehicle. ये है तुम्हारा व्हीकल, तुमको जल्दी है जाने में, राइट? पहले सिंगल लेन होता तो क्या होता, तुमको यहीं से इसके पीछे फॉलो फॉलो करते जाना पड़ेगा, राइट? लेकिन अब टू लेन है, मतलब यू हैव दैट चांस टू ओवरटेक। तुम ऐसे चेंज कर सकते हो, यहाँ से इस लेन से इस लेन में आओगे और फिर से इस लेन में जाओगे। तो फॉर दिस मच डिस्टेंस यू हैव नॉट यूज्ड दिस पोर्शन, राइट? तुमने ये वाला पोर्शन यूज ही नहीं किया, ठीक है? इतना एरिया, इतना लेन का एरिया तुमने यूज ही नहीं किया। उतना डिस्टेंस में तुम यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे चले गए। सो वी आर द लेन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट 100%, मतलब यहाँ पे सब गाड़ी इसी से होकर नहीं जा रहा है, बिकॉज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ चांस टू ओवरटेक। सो यू आर यूटिलाइजिंग दैट पोर्शन एरिया हियर। यहाँ पे तुम ट्रैवल कर रहे, इस लेन पे तुम्हारा लोड जा रहा है, वेयर इस लेन पे गया ही नहीं इतना पोर्शन, राइट? इसीलिए बोला कि यहाँ पे तुम्हारा 100% नहीं होगा लेन डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कंसिडर्ड एज 1.75%, ठीक है? सो मतलब कि टोटल जितना भी व्हीकल्स है उसका 75% ही इस लेन से, इस पर्टिकुलर लेन से जा सकता है। बाकी का 25 दे में यूज दिस लेन ऑल्सो। वेयर यहाँ पे क्या था, टोटल 100% ही इसी लेन से जाना पड़ रहा है। दिस इज द लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है? तो यहाँ पे दे दिया ये सब वैल्यू। सिंगल कैरेज वे है ये, ठीक है? अब डुअल कैरेज वे का मतलब क्या है, जैसे नेशनल हाईवे में देखोगे बीच में मीडियन है, सो दीज आर टू कैरेज वे, तो दो कैरेज वे है यहाँ पे, ठीक है? अब दो कैरेज वे सिंगल लेन भी हो सकता है, टू लेन भी हो सकता है, थ्री लेन भी हो सकता है, फोर लेन भी हो सकता है। तो फॉर एवरीथिंग व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ योर डी लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का वैल्यू ये सब है। जैसे टू लेन का है 75%, फोर लेन 45, एज आई ऑलरेडी सेड। नाउ यू हैव टू एज्यूम दीज वैल्यूज एज पर द क्वेश्चन। अगर बोलेगा डुअल कैरेज वे टू लेन है, सो एलडीएफ या तुम्हारा लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डी विल बी इक्वल्स टू 0.75, ठीक है? अगर बोला फोर लेन है, डुअल कैरेज वे है और तुमको कुछ लेन डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो फॉर फोर लेन डुअल कैरेज वे योर डी विल बी 0.45। तो ऐसे एज्यूम करना है, ठीक है? अब ये जैसे 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 तुम्हारा नंबर ऑफ लेन्स बढ़ रहा है, मतलब वैसे वैसे इसका अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रहा है कि ये हम कम यूज करें। अगर बहुत सारा व्हीकल स्लो मूविंग है तो हम ये कम यूज करेंगे, यहाँ से कम नंबर ऑफ व्हीकल्स ही पास होगा, क्योंकि ये हैव दिस चांस एंड दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी। ये लेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं वो लोग, यहाँ से भी ट्रैवल कर सकते हैं। पहले एक ही व्हीकल यहाँ से ट्रैवल कर रहा था, पीछे वाला भी देख रहा चल हम भी चलते हैं, तो दूसरे लेन से वो चला गया, ठीक है? तो दोनों व्हीकल तो कट हो गया, पूरा तो यूज नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग। नाउ दिस इज दैट फॉर्मूला। तुमको ए पता है, डी पता है, एफ पता है, आर पता है, एन। सो विल कैलकुलेट दिस। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद, डोंट कंसिडर दिस, म्यूट म्यूट प्लीज म्यूट। इफ यू डोंट कंसिडर दिस वन, इफ यू कंसिडर ओनली, अच्छा कार म्यूट करो। If we consider only this formula, we will get a huge number of values. क्यों? मतलब इतना million of vehicles will travel throughout its design life. मतलब 20 years design life. Obviously, number of vehicles, number of repetition of load will be huge number. So ये जो भी number आएगा, that will be your CSA. मतलब कि अगर इसे ये वाला नहीं है, तो जो भी एक number इसको calculate करके जो भी number आएगा, that will give you cumulative standard axle. ठीक है? Cumulative standard axle. अगर इस वाले फॉर्मूला को, वो जो ह्यूज नंबर जो आएगा उसको अगर हम लोग 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मिलियन से हम डिवाइड कर देंगे, 10⁻⁶ मतलब डिवाइड बाई 10⁻⁶, सो वी विल गेट दैट वैल्यू एज MSA, ठीक है? सो after getting this value and we have already calculated या determined the CBR value of subgrade, so दो वैल्यू हमको मिल रहा है, तो दोनों से हम लोग को डिजाइन करना है। पेवमेंट थिकनेस कैसे डिजाइन करेंगे, सी हियर वी कैन यूज टू चार्ट्स। एक चार्ट में है कि सिर्फ टोटल पेवमेंट थिकनेस कितना होगा वो पता चलेगा इफ वी नो दिस एन एंड सीबीआर वैल्यू। एन और सीबीआर वैल्यू यूज करके, ठीक है, पेज नंबर 8 और 9 में अगर जाएंगे तो देखेंगे कि सिर्फ टोटल थिकनेस हमको पता चलेगा उस डिजाइन चार्ट से। अगर तुमको वो पूछा गया कि इंडिविजुअल, हाँ बोलो, सीबीआर वैल्यू दिया रहेगा क्या? हाँ हाँ देखो दिया भी रह सकता है और दे विल आस्क यू टू डिटरमाइन आल्सो, ठीक है? इसीलिए वो पहले वाला लेक्चर थोड़ा पढ़ लेना कि सीबीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इस वाले चार्ट से सिर्फ हमको टोटल थिकनेस पता चलेगा, वेयरएज इस वाले एक कैटलॉग है, ठीक है, डिजाइन कैटलॉग, उससे हमको टोटल के साथ साथ जो भी इंडिविजुअल लेयर है उसका भी थिकनेस पता चल जाएगा। टोटल भी पता चल जाएगा और इंडिविजुअल थिकनेस भी पता चल जाएगा, इंडिविजुअल कितना होगा थिकनेस। उसको लिए चलो देखते हैं कैसा है वो चार्ट।
बोला पेज नंबर 8 एंड 9, ठीक है, हम स्क्रीनशॉट करके रख दिए, तुम लोग देख सकते हो पेज नंबर 8 और 9 में ऐसा मिलेगा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दो वैल्यू है, एक है तुम्हारा बोला है कितना, फॉर पेमेंट थिकनेस डिजाइन चार्ट फॉर ट्रैफिक 1 to 10 MSA, एन का वैल्यू एक वैल्यू आएगा, अगर वो वैल्यू इसके बीच में रहेगा तो ये वाला चार्ट, अदरवाइज अगर उससे ज्यादा आया तो ये वाला चार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, सपोज तुम्हारा वैल्यू आया है कैलकुलेट करके, सपोज बोल रहे 8, दिस इज योर 8, ठीक है, सपोज तुम्हारा एक वैल्यू आया है, कैपिटल एन का वैल्यू आया 8 MSA इन टर्म्स ऑफ MSA, और सीबीआर तुमको बोल दिया है सपोज 4, देखो ये सब है सीबीआर के लिए, सीबीआर 3 4 5 7 ऐसा, तो इसको स्ट्रेट जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा 4, यहाँ पे सीबीआर 4 ये वाला कर्व है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसका पर कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में जो भी वैल्यू रहेगा, सपोज दिस इज दैट वैल्यू, तो कितना है 680, ठीक है 680 mm, दिस इज योर नाउ डिजाइन थिकनेस, टोटल थिकनेस, देखो टोटल थिकनेस ऑफ पेवमेंट इन mm, क्लियर, क्लियर है, तो कैसे करना है, पहले एमए से लो, यस मैम, फिर उसका यस। कॉरेस्पॉन्डिंग सीबीआर जो भी कर्व है उसमें टच करता है जो लाइन, वहां पे जाओ, फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस निकाल, दैट विल गिव यू द टोटल पेमेंट थिकनेस। सिमिलर यहाँ पे भी करना, अगर तुम्हारा सपोज 12 एमए से हुआ तब क्या करोगे वैसा, ठीक है। अब ये नहीं करके हम लोग जाएंगे दूसरा में, दूसरा क्या है कि हम उसमें इंडिविजुअल थिकनेस भी पता चलेगा, जैसे तुम्हारा ये वाला चार्ट, ऐसा चार्ट है, ऐसा बहुत सारा चार्ट होगा, देखो यहाँ पे पेज 21 से है शायद, हाँ पेज 21 से, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पेमेंट डिजाइन कैटलॉग, रिकमेंडेड डिजाइन फॉर ट्रैफिक रेंज, यहाँ पे भी ट्रैफिक रेंज देखना है, फर्स्ट एक ट्रैफिक रेंज देखना है, और क्या देखना है सीबीआर, ठीक है। हम लोग का सपोज 1 to 10 MSA है, ओके ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सीबीआर 2 नहीं है, सीबीआर सपोज हम बोले थे कितना है हमारा 4 है सीबीआर, तब नीचे जाओ और भी बहुत सारा मिलेगा, देखो सेम ट्रैफिक का रेंज है 1 to 10, सीबीआर 3 है, ये भी नहीं चलेगा, अगेन 1 to 10 हम लोग का 8 MSA आया था, सीबीआर इज योर 4, सो नाउ वी कैन यूज दिस चार्ट। अब दिस चार्ट में देखो, अच्छा म्यूट करो ना कर, यहाँ पे देखो दिस इज द क्यूमुलेटिव ट्रैफिक MSA, ठीक है 1 2 3 ये सब, और ये वाला कॉलम है तुम्हारा टोटल पेमेंट, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एन के वैल्यू के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग थिकनेस टोटल कितना है, और इंडिविजुअल एज आई सेड तुम लोग का पेमेंट लेयर कितना होता है, फर्स्ट में वेयरिंग कोर्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर, ठीक है, सॉरी सरफेस कोर्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर, मतलब एक है वियरिंग कोर्स और एक है तुम्हारा बाइंडर कोर्स, ठीक है। फिर उसके नीचे है तुम्हारा ग्रैनुलर बेस, फिर उसके नीचे है ग्रैनुलर सब बेस, और उसके बाद आएगा तुम्हारा सब ग्रेड, तो सबका थिकनेस है, इसका कितना यहाँ से हमको पता चल जाएगा, হ্যালো ठीक ম্যাম, है। हाँ বলছি সিরিয়াল ভ্যালু না দেওয়া থাকলে কি ইউএস ক্রপ দিয়ে ওই ফর্মুলাটা দিয়ে বার করবো? সিএবিআই তো ওখানে তো লাগবে, ইউএস কোর্টে তো আরো লাগবে। না না, বলছি যদি সিরিয়াল ভ্যালু না দেওয়া থাকে ম্যাথে, তাহলে কি ওই সিরিয়ালের যে ফার্স্ট ইয়েটা আছে ইউএস ক্রপের যে না না ইউএস কোর্টে তো ফর্মুলা ঠিক, ওখান থেকে। ইউএস কোর্টে তো থিকনেসের ফর্মুলা, ঠিক আছে, শুধু থিকনেস, ওখানে তোমার সিবিআরটা পুট করে আমি থিকনেস পাবো ইউএস কোর্টে, বাট সিবিআর তো একটাই ফর্মুলা তোমার, सैंपलर 2.5 mm डिफॉर्मेशन के लिए আচ্ছা कितना হ্যাঁ, लोड ওইটাই है, বলছি, ওইটাই हाँ ওইটাই বলছি। हम्म, আচ্ছা ठीक है। सो देख लो अगर हम लोग का वैल्यू आया था कितना, हम लोग एज्यूम किए थे, मेरा कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 8 MSA, नाउ सी हियर 8 MSA इसमें रेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 8 MSA कहाँ पे करेगा 5 और 10 के बीच में, राइट, देखो 5 और 10 के बीच में करेगा, समवेयर हियर 8 MSA, तो क्या करेंगे सबका इंटरपोलेट करना है, इंडिविजुअल का इंटरपोलेट करने के लिए, इंटरपोलेशन तो आता ही होगा, इंटरपोलेट करके एक वैल्यू आएगा, दैट विल बी योर करेस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल लेयर थिकनेस, टोटल भी आ जाएगा, इंडिविजुअल कितना थिकनेस है वो भी आ जाएगा, सो दिस इज द टोटल प्रोसीड्योर, ठीक है। एक एग्जांपल अगर देखेंगे, ये तो कैलकुलेट एन का वैल्यू है, यू कैन गो थ्रू इट, इजी है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे डाटा नहीं दिया तो वी हैव टू एज्यूम दोस डाटा, देखो सी ए से पहले ये शिफ्ट करके सी ए से आएगा, इंटू 10/6 करने से एम ए से, तो 42.89 एम ए से आ रहा है, ये वाला देखो,
डिजाइन द पेवमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाईवे। आई सेड दिस इज एज अ हाईवे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिजाइन लाइफ। ना पेस्टा हाँ जूम जूम जूम, अच्छा wait, here, see, डिजाइन द पेवमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाईवे। ठीक है, न्यू हाईवे का मतलब क्या है यहाँ पे, वी कैन एज्यूम डिजाइन लाइफ हैज टू बी 15 ईयर्स, ये एज्यूम हो गया। विद द फॉलोइंग डाटा, देखो 2 लेन सिंगल कैरेज वे, मतलब क्या है, सिंगल कैरेज वे है और 2 लेन बोला है। ठीक है, तो इसका क्या बोले थे हम, डी आएगा, लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा, विच इज 75%। ओके, इसको डेसिमल में अगर करेंगे तो 0.75। ठीक है, तो डी हमको यहाँ से आ जाएगा। ट्रैफिक काउंट एज पर लास्ट काउंट, या ट्रैफिक वॉल्यूम एज पर लास्ट काउंट। लास्ट काउंट का ही मतलब है कि बिफोर कंस्ट्रक्शन। so this value is your p value, not the a value। हमको a value यहाँ से चाहिए। तो a इक्वल्स टू क्या था, a इक्वल्स टू था तुम्हारा, a इक्वल्स टू था p इंटू 1 प्लस 1 r, plus r, to the power हाँ r to the power x, right? yes. Now what is r traffic growth rate, we can assume again this as 7.5%। x भी नहीं दिया है, here also we can assume 3 to 4, so we will assume 3 years। ठीक है, और क्या दिया है, VDF दिया है, यहाँ पे VDF कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, VDF इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, और डिजाइन CDR ऑफ सबग्रेड है 4%। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, सो दे आर आस्किंग यू टू डिजाइन द पेवमेंट। तो देखो 2 लेन के लिए बोला है 7.75, नेशनल हाईवे N 15 years, VDF F is 2.5, traffic volume as per last count is this much, let us assume construction period as 3 year। ठीक है, ट्रैफिक ग्रोथ है 7.5%, यहाँ पे पुट कर दो 400 CBP दिया गया। दिस इज कमर्शियल व्हीकल पर डे, कमर्शियल व्हीकल पर डे सब दिया गया है, यहाँ पे पुट कर दो। अच्छा यहाँ पे देखना और एक फैक्टर है, लोड सेफ्टी फैक्टर, एज्यूम इट एज 1 इफ इट्स नॉट प्रोवाइडेड। या बहुत सारे प्रॉब्लम में लोड सेफ्टी फैक्टर भी दिया रहता है। ठीक है, नहीं तो एज्यूम करना इट टू बी एज 1 करके देखो, इंटू 10⁻⁻6 करें, ह्यूज सिर्फ ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो ह्यूज नंबर आएगा, इंटू 10⁻⁻6 कर दो, सिर्फ ये वाला करने से आएगा तुम्हारा CSA, इंटू 10⁻⁻6 अगर करेंगे तो MSA। सो दिस इज दैट MSA, देखो ये आ रहा है 7.15। ठीक है, अब देखो, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ M एंड CBR, यूज द चार्ट। प्रॉब्लम तुमको सिर्फ ये वाला चार्ट भी दिया रहेगा बहुत सारे प्रॉब्लम में, तब तुमको इंडिविजुअल लेयर की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट कैलकुलेट द टोटल थिकनेस एंड लीव इट, वो तुम्हारा आंसर है, और इसका इंडिविजुअल नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा आ रहा है कितना, 630। देखो यहाँ पे तुम्हारा 7.1, तो समवेयर यहाँ पे होगा, इसको उठाओ उठाओ उठाओ, CBR है तुम्हारा 4, समवेयर यहाँ पे टच किया, इसको इधर इधर करो, अप्रॉक्स 650 या 630 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो हम इधर कर दिया है 630। अब आता है कि बोला गया बहुत सारे प्रॉब्लम में दे विल गिव यू दिस चार्ट ऑल्सो, ऐसे भी चार्ट दिया रहेगा, तो उसको तो कैसे करोगे। हम लोग का है 7.1, ये इसके बीच में, अच्छा ये वाला देखो, पहले हम लोग का रेंज कितना था 7.1, सो इट लाइज विद इन दिस रेंज 1 to 10 MSA, और CBR तुम्हारा 4, तो वी आर यूजिंग दिस चार्ट ओनली, देयर आर सो मेनी चार्ट्स आउट ऑफ दिस, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये वाला चार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो अब इस दोनों के बीच में है, तो इसको इंटरपोलेट करके वैल्यू निकालो, तो इंडिविजुअल लेयर का ये आएगा, जैसे 7.15 था तुम्हारा, उसका करस्पॉन्डिंग इंटरपोलेट करके ये है तो टोटल थिकनेस, दिस इज अ बेयरिंग कोर्स, दिस इज अ बाइंडर कोर्स, दोनों मिलाकर है सरफेस कोर्स, फिर बेस कोर्स, सब बेस कोर्स। सो दिस इज द मेथड, क्लियर।